جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ڈاکٹر سکینہ اتو صاحبہ قدم بڑھائیے، اتو صاحبہ قدم بڑھائیے، اتو صاحبہ قدم بڑھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہاں پہ میری بہن ڈی ڈی سی ممبر منزگام جمیلہ جی، سون سینئر بزرگ ایکس بورڈ ممبر مرحوم اتو صاحب ساتھی صوبیہ پسوال صاحب، یہ میں ٹنگ مرگ حلقوک ایکس سرپنچ میون بوئے منیر احمد جوہی صاحب، یہ بیاق سون بوئے اسلم صاحب، غلام حسن صاحب، اور میون بوئے بیاق ارشاد احمد پسوال صاحب، رفیق صاحب، زبیر احمد صاحب، ذاکر صاحب، اور خاص طر جو یہاں اس پروگرام میں میرے بھائی، میرے بزرگ، میری ٹنگ مرگ کی بہنیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹنگ مرگ میں اکثر بیشتر میں آتی ہوں، آپ سے ملاقات کرتی ہوں، چاہے وہ الیکشن ہو یا چاہے وہ الیکشن کے بغیر ہو۔ ٹنگ مرگ وہ جگہ ہے جہاں مرحوم اتو صاحب اکثر بیشتر زیادہ تر ٹائم میرے بھائیوں کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے ڈوکوں میں بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھی رات 2 بجے جب گھر آتے تھے اور میری ماں ان سے لڑتی تھی، کہتے تھے اب 2 بجے کی آنے کیا ضرورت تھی، کہتے تھے میں آج ٹنگ مرگ کے فلانی جگہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ان کو اس علاقے کی بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا یہاں کے لوگوں سے، اور مجھے یاد ہے جب بھی کبھی فاروق صاحب خواہش کرتے تھے نور آباد میں جلسہ کرنے کے لیے، اور اتو صاحب ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم یہ جلسہ ٹنگ مرگ اہربل میں کریں گے۔ کئی ان کی کنونشن، میں بہت چھوٹی تھی تب، جس میں فاروق صاحب آئے، ان کے کہیں ساتھی آئے، اور اس ٹنگ مرگ اہربل میں انہوں نے وہ کنونشن کیے، اور بہت کامیاب کنونشن کیے۔ بہت مشکلیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی، بہت پریشانیاں دیکھی، کیونکہ حالات ایسے رہے، جب خراب حالات ہوئے، کئی ہمارے ٹنگ مرگ کے بھی لوگوں نے بھی چاہے ان کو کڈنیپ کیا، چاہے کئی ہمارے لوگ جو مر گئے، جو آج نہیں ہیں ہمارے درمیان، اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اپنی جگہ دے۔ لیکن میں یہ فخر سے کہتی ہوں کہ ٹنگ مرگ نے بھی ہمیشہ انشاءاللہ نیشنل کانفرنس اور اتو صاحب کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ انشاءاللہ وفائی کیا ہے۔ تھوڑا سا 14 میں کچھ کمی ہوئی، کچھ غلطی ہوئی، لیکن شاید اس میں کچھ ہماری بھی کمی رہی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف آپ کی طرف سے کمی رہی، مگر اپنی طرف سے میں نے کوشش کی تھی، چاہے آپ کا پانی کا مسئلہ ہو،
वाटर सप्लाई स्कीम हमने नई भी दे दी। यहाँ सोलर की बात हो, सोलर हमने यहाँ दिए, कुछ एरिया में, कुछ एरिया रह गया। उसके बाद हाई स्कूल की बात हो, हमने यहाँ पे हाई स्कूल डिमांड आई और हमने हाई स्कूल भी आपको यहाँ दिया। टंगमरग हमने पटवारी हल्का भी बना दिया। यहाँ आज पटवारी बैठता है आपके पास, जो आपके छोटे छोटे काम यहाँ पे करता है। इसी तरह जैसे मेरी बहन ने कहा, रेजिडेंशियल मॉडल एकलव्य स्कूल जो मैंने हमारे एसटी भाइयों के लिए दिया, क्योंकि हमारे एसटी भाई प्राइवेट में नहीं जा सकते, लेकिन हमारा इरादा यही था। ये 40 लाख 50 लाख का प्रोजेक्ट था, 18-20 करोड़ का हमने सोचा था कि आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी रहेगी ताकि आपको प्राइवेट में ना जाना पड़ा। हमने आपके लिए एसटी हॉस्टल यहाँ लाया था, लेकिन जब हमारी सरकार चली गई 2014 में, उन लोगों को ये भी पसंद नहीं आया कि मेरा टंगमरग का बच्चा उस हॉस्टल में रहे, वहां पे खाना पीना उसको साफ मिले या वहां पे वो रह सके। उस हॉस्टल को भी उस वक्त साजिश के तहत गवर्नमेंट जाने के बाद यहाँ से हटा लिया और आज तक वो एसटी हॉस्टल को वापस नहीं ला सके। चाहे आरईटी स्कीम के जरिए कई नौजवान हमारे भाई एसटी के, जिनको हमने रोजगार दिया, और आरईटी स्कीम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में यहाँ शुरू की गई। कमियां भी रही होंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सारा कुछ आपका ठीक कर दिया। बहुत कुछ और करने को था जो आज तक शायद हुआ होता, लेकिन 14 में जो गलती की नूराबाद के लोगों ने, एक ऐसे इंसान को लाया जिसको सियासत का ABCD भी पता नहीं था। तभी मैं आपको हमेशा कहती थी कि अगर लाइनमैन को आप कारपेंटर के काम पे लगाओगे वो मकान गिर जाएगा, अगर कारपेंटर को बिजली का काम दोगे वो कनेक्शन देके मकान और फ्यूज सब कुछ उड़ा देगा। वही नूराबाद के साथ हुआ। आपने एक गलत इंसान को सियासत में लाके खड़ा कर दिया। मेरे टाइम पे मुझे बताओ, टंगमरग का हर फर्द कश्मीर नोटिस के लिए जब आता था, मुझे चाहिए, और हम एक छोटी सी एप्लीकेशन पे एक लफ्ज लिखते थे, जितना उसको मर्जी हो उतना उसको लकड़ी मिल जाती थी। नयाबत हमने यहाँ पे दी है टंगमरग में। मेरे टाइम पे आप बिजली फीस 50 रुपए 100 रुपए देते थे, लेकिन आज आपको बिजली फीस से इतना परेशान किया, आपने अपने कनेक्शन ही काट दिए, बोला हमें जरूरत नहीं, हमें माफ कर दो। 1400-1500 मेरा एसटी भाई या नॉन एसटी भाई नहीं दे सकता। बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजली का जो हाल है, ट्रांसफार्मर महीनों जले रहते हैं, और बिजली जो है वो 1 घंटा, आज देखो अभी फिलहाल वंचु गर्भ कोई मौसम मंद छू ही नहीं, लेकिन आखा घंटे से बिजली एवं 3 घंटे से बिजली खत्म गसन। इसलिए हमने इरादा किया है, इंशाल्लाह हम आपके ये मुश्किलात हल करेंगे। अभी हमने अपने मैनिफेस्टो, हमारा जो प्रोग्राम है, जो मैनिफेस्टो हमारी पार्टी ने बनाया, उसकी एक मेंबर मैं थी। हमने कहा हम 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देंगे इंशाल्लाह। और ये जो आपका बिजली बिल है, ये एक टाइम पे अगर आप इकट्ठे भरोगे, जितना आप भर सकते हो, बाकी इंशाल्लाह आपका उसी में सेटल हो जाएगा। आज आपके वो जंगल जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा था, अगर इन जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो इन जंगलों के हकदार है, वो इन जंगलों के शेर है, चाहे वो एसटी हो या नॉन एसटी। लेकिन आज अगर मेरा एसटी भाई अपने माल मवेशियों को घास खाने के लिए डालता है, उसको पीछे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके तारबंदी कर देता है। आज आपके घरों तक इन्होंने तारबंदी की है, और वो जंगल जो आपके हक
माना जाता था, उस जंगल को आपके कब्जे से लेके अपने कब्जे में डाल दिया। बीजेपी सरकार जो यहाँ आई, जो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाने वाले लोग थे, वो पीडीपी के लोग थे। उन्होंने इस बीजेपी को यहाँ लाया और हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा तशख्खुस, हमारी पहचान 370-35 से हमारी लैंड गारंटी, जैब गारंटी, जो हमारे पास नौकरियां थी, आज टंगमरग का लड़का नहीं लगता, आज बिहार का लड़का लगता है कुलगाम में। आज जो टंगमरग का मेरा भाई नहीं लगता, मेरी बहन नहीं लगती, आज यूपी से लड़का आता है, वो वहां पे नौकरी हासिल करता है। ये हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का था, लेकिन ये हमसे छीना गया। हमारा सब कुछ जो हमने 50 साल में हासिल किया गया, वो सब कुछ हमसे खत्म किया गया। आज अगर 50 मिल्कियती जमीन असमस कमर बने हो, दूसरे दिन उसी दिन बिल्डोजर बाबा पहुंच जाता है, आपको वो मकान, वो कमरा भी अपनी जमीन में भी नहीं बनाने दिया जाता है। इसलिए आपका सब कुछ जो वकार इज्जत थी वो इन्होंने छीनी है। आज बहुत लोग आते हैं आपके पास, मगर उन लोगों का कोई ईमान नहीं है। वो सियासत इसलिए नहीं करते कि आपकी मदद करेंगे, वो सियासत इसलिए करते हैं उनको अपने घर बनाने हैं। ये वही पीडीपी के लोग हैं जो उनका जिम्मेवार इंसान मामा ठाकुर, वो मामा ठाकुर 15-15 लाख एक बैंक नौकरी से लेता था। आज वो फिर रूप बदल के आते हैं आपके पास। 2014 में ये पीडीपी का कैंडिडेट अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सामने लाया था आपके पास, ये याद है कि नहीं है, सही है कि गलत है? उस वक्त उसने कहा हमारा ये कैंडिडेट है नूराबाद के लिए, आप सब इसको वोट दे दो। वर्षनी हो समझी इवन काल जनता दल, सुबह बीजेपी, कल के अपनी पार्टी, बेदो गुलशा साहब रलन, बेदो कांग्रेस रलन, बेदो को जो जेडीओ पेडीओ एक बुझ में दी आवाज था। यहाँ कश्मीरी क्या करेगा जेडीओ को? बेदो केजरीवाल, बेदो प्रेशर कुकर, नई नई चीजें हम सुनते हैं। मगर आप ये चीज सोचो कि सकीना इतू ने कभी पार्टी चेंज की? सकीना इतू आज तक उसी पार्टी में है जिसमें मरहूम शहीद वली मोहम्मद इतू साहब है, और इंशाल्लाह हमेशा अपने ईमान पे रहेंगे। क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेके आते हैं कि हमारी जमात, हमारी तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और हमारे कायद कादिसानी डॉक्टर फारूक साहब है, और हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब है। हम इनकी तरह एक एक महीने में पार्टियां नहीं बदलते, हम इनकी तरफ एक एक महीने में पार्टियों के लीडरों के नाम नहीं बदलते। एक बार कहते हैं महबूबा जी हमारी लीडर है, दूसरे बार कहते हैं अल्ताफ बुखारी साहब लीडर है, तीसरे बार कहते हैं गुलशा साहब लीडर है, चौथी बार कहते हैं राहुल गांधी जी लीडर है, सोनिया गांधी जी लीडर है, पांचवी बार कहते हैं जेडीयू का जो वहां दिल्ली में रामविलास पासवान, क्या नीतीश कुमार जी, अब ये हमारा लीडर है। छठवीं बार कहते हैं कि अब हमारा लीडर केजरीवाल है। जब ये अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं कर सकते तो मेरे एसटी भाई के साथ क्या वफा करेंगे? मेरे नूराबाद के भाई के साथ, बहन के साथ क्या वफा करेंगे? ये सच है। जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आज मैदान में आ रहे हैं आपसे वोट मांगने के लिए, पहले देखो वो लोग कौन है। एक तो वो है जिसको आपने 14 में वोट दिया, इकट्ठे सारे थे उस वक्त भी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थे ये सारे। इनका एक ही मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना। आज ये अलग अलग है। आज चौक जेडीओ सोच बिचोर दम डॉक्टर, मगर काश अगर वो टंगमरग में बैठा होता, मेरे एक एसटी भाई का दांत निकाला होता आज तक, तो आज मैं अपने टंगमरग के भाइयों को कहती कि आप जाके इसको वोट दो। लेकिन मुझे बताओ, टंगमरग की बहन, टंगमरग का मेरा भाई अगर एक बोलेगा कि हमारा दांत उससे निकाला है, चाहे 50 रुपए में या 60 रुपए में,
मैं कहूंगी कि उसको आने का हक है। कोरोना कैसे दान एक भी फर्ज नहीं होगा जिसका दांत निकाला हो गया, जिसको दांत के लिए दवाई दी होगी, उससे डॉक्टर बन के सऊदी अरब में चला गया, वहां से पैसा कमाया, और जब यहाँ हालात खराब हुए वो भी एक मिलिटेंट तंजीम चलाता था, तथोस्नाव अल फतह। क्या वो साव उस अल फतह तंजीम में मिलिटेंसी में पैसे इन्होंने जमा किए, लोगों का इस्तेसाल किया, लोगों को डराते धमकाते थे। आज ही हिमायत ब्रोट को वोट छाड़ने, क्या ये आपके वोट के हकदार है? इन छात्रों वोट के हकदार, जोर से बोलो हाँ या नहीं। दूसरा जो है पीडीपी का कैंडिडेट, वो पहले पाकिस्तान गया, वहां से बंदूक लाया, एमएम का कमांडर बना। सोबिया साहब को याद होगा जब मैं 96 में इलेक्शन लड़ती थी, जब मुझे लोगों ने मजबूर किया आप डॉक्टरी छोड़ के सियासत में आ जाओ, हमारे हमदर्द लीडर इतो साहब शहीद हो गए, अब आपको आना पड़ेगा। जब मैं सियासत में आई, जब ये मेरे साथ चलते थे, रात को वो एमएम कमांडर इनको किडनैप करता था, मारपीट करता था। इसको पता है, इसको भी 2 बार किडनैप करके ले गए उस इलेक्शन के दौरान। गुलाम नबी लोन नागाम, आज वो जिंदा नहीं है, अल्लाह ताला मगफिरत करे, इतो साहब का हल्का प्रेसिडेंट, उसको किडनैप करके ले गया और इसको इतना टार्चर किया। मैंने शाह पकिन तुझन कमीज थोद, अल्लाह गवाह है, वो खून ही खून, उसका जो बैग था, कमर था, सो उस खून ही खून इम्स्टेस पता। हमारे बहुत सारे वर्करों को किडनैप करता था, और फिर जब सियासत के का नाम उठा यहाँ पे, अगर गोडनेट कैसे इलेक्शन में तनसाब फार्म बोर सुबुर तमी शख्सन, और वो भी जनता दल के साथ। जनता दल के बाद फिर चला गया वो कांग्रेस में, फिर चला गया वो गुलशाह साहब के साथ, फिर चला गया वो जरगर साहब के साथ पीडीपी में। फिर जब जरगर साहब को मैंडेट मिला, उसको नहीं मिला, 2008 में फिर भाग गया, लड़ा एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन। फिर 2014 में पतवसिम सौदा करन दबन कोता पोस दियो में हम से 2 लाख रुपये, उसके बाद फिर पार्टियां ज्वाइन करते थे वापस। रात एसएस भाई किस गांव में जिसका नाम है सेल खनन गांव, तो वो गांव वाले वो ये मिलिटेंट पाते इखवान बनो, क्या इखवानी को मेरा नूराबाद का बाशूर नौजवान बुजुर्ग वोट डालेगा? नहीं डालेगा। फिर इखवान में बैठ के फिर लोगों को किडनैप कराता था, टार्चर कराता था, और पदोसुंदन नारा जुतमत दोपन ओसुक या दो पैसे या खाओ मार, मेरा नाम है गुलजार डार। क्या हो जबन, या दो पैसे या खाओ मार, मेरा नाम है गुलजार डार। इखवान इखवान में वो ये नारा देता था, और तिमल नफरन दीवान पर इनको शर्म नहीं आती है। यम काल गड़ा पीडीपी बेदोश अपनी पार्टी, बेदोश बे पीडीपी, और उनको टंगमरग में एक फर्क भी साथ नहीं है। इन काल पगा पार्टी से टंगमरग में बदलाव आपने उनको कल ही पार्लियामेंट इलेक्शन में साबित करके दिखाया कि आपकी जगह टंगमरग में नहीं है। और मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ आई पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब यहाँ हमारे लोग लाइनों में खड़े थे, और अगर 7 बजे 6 बजे का टाइम नहीं होता तो शायद इससे कहीं ज्यादा वोट भी अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को करते। और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ जो पार्लियामेंट इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी आपने दिखाई, चाहे तत्व सूर्या साहब चाहे यम दिए नफर वर्कर वोटर तिमन सारी देखो मुबारकबाद। और यहाँ हमारी बहन जमीला जी भी है, इससे भी अपने डीडीसी मेंबर होके जितना हो सका आप लोगों की मदद की, और ताकि तो रात साबित करे कि अगर यहाँ कोई जमात है, अगर यहाँ कोई झंडा है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो लोग ये कहते थे कि ऐसा सब पट्टे डराते थे मेरे वोटरों को कि आपकी वोट की कीमत नहीं है, हमें मोदी साहब उधर से भेजेगा,
हमें अमित शाह साहब उधर भेजेगा, आप टंगमरग के लोग वोट डालो या नहीं डालो। लेकिन मैं मुबारकबाद देती हूँ टंगमरग के लोगों को, नूराबाद के पूरे लोगों को। आप डरे नहीं, आपने अपने अक्ल से काम लिया, अपने दिमाग से काम लिया और अपना कीमती वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाला। मुझे बताओ, जब हमने कल 18-19 हजार अल्ताफ साहब को लीड नूराबाद में दी, आज ये किसके हाथ में मुमकिन है कि वो ये लीड बदल सकता है? और आज ये लीड उससे कई गुना इंशाल्लाह ज्यादा होगा आपकी दुआ से, अल्लाह ताला के चाहने से। ये मुझे करा बनन टाइम जाए, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ जो हमारे भाई यहाँ कुछ परसेंट आशन में 8% ज्यादा नहीं होगा तुम लसमस खाना, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ आप आ जाओ। हम अगर नूराबाद के लोगों की बहन है, बेटी है, आपकी भी इंशाल्लाह बहन और बेटी है, आप आ जाओ। हम आपकी भी खिदमत उसी तरह करेंगे जिस तरह इन लोगों की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला गवाह है, हमें कोई फर्क नहीं है। आप भी हमें अजीज हो जिस तरह नूराबाद का हर फर्द, हर बाशिंदा अजीज है। मकरू पनुन वोट जाए, 5 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। आगे फिर आपके कामों में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तब भी आपको मदद करने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है आप अपना कीमती वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालोगे और सकीना इतू अपनी बहन, अपनी बेटी को कामयाब करेंगे। अच्छी बन्नीस मैनिफेस्टोस में थोमुद इंशाल्लाह 5 साल रोपी सानियन बहन, जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब हैं, उनको हर महीने में हम 5-7 रुपया सपोर्ट करेंगे ताकि अपना घर चला सकेंगे। हमारा पहला पॉइंट उस मैनिफेस्टो में है 370-35 है, और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो एक पुरानी रियासत है उसको इंशाल्लाह वापस लाना, मगर उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जुद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसमें आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए। ओल्ड एज विडो पेंशन इस पे अक्सास दिवन छु सानी गवर्नमेंट पे आज ताले अच्छे इंशाल्लाह फर्स्ट कोरमती ओल्ड एज विडो पेंशन बढ़ाओ 347। और इन बहनों को इमन गैस सिलेंडर 5-7 रुपया अच्छे एराद कोरमत के इनको 12 सिलेंडर जो है वो 1 साल में इंशाल्लाह मुफ्त देंगे ताकि इन्हें कंपनी को हम पकड़े। 1 लाख नौजवानों के लिए हमने इंशाल्लाह रोजगार रखा है। जो कैजुअल लेबर डिलीवेजर है उनको हम इंशाल्लाह परमानेंट करेंगे इन 5 वर्षों में। हमने इन बहनों को गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री में इंशाल्लाह जब ये सफर करेंगी फ्री होगा इनके लिए ट्रांसपोर्ट। जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम है जिससे 50,000 मिलता है मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए, वो हमने 75,000 इंशाल्लाह रखा है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब ने हर जलसे में कहा कि आप जम्मू कश्मीर में सेफ्टी एक्ट की जरूरत नहीं है। हमारे नौजवानों को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे बहुत नौजवान आज भी जेलों में है। ये सेफ्टी एक्ट इंशाल्लाह यहाँ से हम खत्म करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, आपके लिए है, आपकी पहचान के लिए है। जो पहचान, जो शिनाख्त, जो इज्जत खत्म की गई, जो झंडा हमसे छीना गया है, आज ये इलेक्शन उसके लिए है। और इंशाल्लाह मैं यकीन रखूंगी, भरोसा रखूंगी अपने इस टंगमरग के हर बाशिंदे पे, बुजुर्ग पे, जवान पे, बहन पे। और इंशाल्लाह 18 सितंबर कर मैं पूछता छोड़ा किसने क्या शुमार बुधवार को आप निकलोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से शुक्र तुंदी दुआ से आज और छाड़न पटन के आज में कोई बदल सके तो निशान अलगाड़ो निशान तो सीरियल नंबर 1। और जब आप जाओगे आपको ये बटन पे उंगली रख के थोड़ी देर रुकना है, बटन दबा के भी रुकना है जब तक ये लाइट नहीं आएगी और आवाज नहीं आएगी, तब तक आपका वोट सही से नहीं होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप जब निकलोगे, नमाज पढ़ोगे चाय के बगैर,